Hello everyone, I welcome you all again on this channel, on this YouTube channel that is TechCube Gate Classes. So those who have not subscribed yet, you can subscribe and so that you will access all the videos. Okay, so means you will get the update whenever usually we are updating the video at the uploading the video at the 10:30 a.m. of every day morning. Okay, so you will get that notification of that. So this is all about me, okay? And we start in the last lecture. Basically, we started this subject, that is machining and the machine tool operations. Okay, and this is the second video. In the last video, lecture one, we discuss about the syllabus and the analysis part, that what we are going to study in the upcoming lectures, and what is the problems that has been asked previously in the gate examinations, how many problems, and what is the weightage that every year in the gate examination, okay, from this subject. So this is the second lecture, okay, and the topic that we are going to cover in this lecture is purpose and the principle of the machining, and secondly we'll discuss about the concept of the directrix and the generatrix. Okay, so I welcome you all again on the Let's Crack the Gate along with the TechCube faculties. Okay, so let's start. Okay, so first we are going to discuss about the purpose and the principal part of the machining operation or metal cutting, we can say. So first, in this slide we are discussing the purpose. In the next slide we'll discuss about the principal part. Okay, तो देखिए जो इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस हैं उनको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो एज इट इज लिखी हुई हैं. तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन डेफिनेशंस को पढ़ रहा हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू दैट व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन, एंड देन अगेन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू यू कैन कोरिलेट जो मैंने आपको समझाया है उससे, ठीक है. So first is purpose of the machining is like most of the engineering components such as gears, bearings, clutches, tools, screw and nuts, etc. need dimensional accuracy and surface finish, okay, for serving their purposes. So अब बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पर्पज का मतलब क्या है. कि मान लीजिए कि कोई भी मशीनिंग अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मशीन्स, कन्वेंशनल मशीन्स, तो अगर हम कोई मशीनिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं देन व्हाई वी आर गोइंग टू डू दैट. ओके, तो उसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि गियर आपका एक एग्जांपल है. फॉर एन एग्जांपल वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ गियर. Just try to assume that this is a gear, okay, and सभी जो टूथ हैं वो सेम डायमेंशंस के हैं. रफ फिगर है, so just try to assume that. Okay, तो फर्स्ट कंडीशन जो है टू मैन्युफैक्चर दिस गियर इज, हम क्या करते हैं कि कास्टिंग में जो मैक्सिमम जो पैटर्न्स हम लेते हैं दैट इज ऑफ वुड. ओके, तो मान लेते हैं कि हम एक होलो पैटर्न्स बना लेते हैं, ठीक है. स्पेसिफिक थिकनेस, जिस थिकनेस की आपको जो थिकनेस आपको विड्थ उसकी चाहिए गियर की, ठीक है, इस टूथ की जो थिकनेस आपको चाहिए वो थिकनेस हम मेंटेन कर लेते हैं पैटर्न की उससे थोड़ी ज्यादा. उसके बाद क्या करते हैं कि मान लीजिए जो भी मटेरियल का आपको गियर बनाना है, वेदर इट्स एल्यूमिनियम और जो अलॉयड स्टील्स हैं, ठीक है, तो देन व्हाट यू कैन डू इज you can melt that material and you can pour that molten material into this pattern by using the different casting equipments. So once you will pour it after the solidification temperature or when it will reach to the room temperature, after that we will remove that mold. Okay, so you will get that gear basically. Okay, बट जनरली क्या होता है कि जो गियर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम लोग थ्रू द कास्टिंग, द सरफेस फिनिश इज नॉट दैट मच गुड. ठीक है, पहला तो सरफेस फिनिश का हो गया. दूसरा क्या है, why what is the reason of that is basically we are taking the patterns of the woods. Okay, and woods में क्या होता है कि हम लोग इतनी सरफेस रफनेस अच्छे से दे नहीं सकते हैं, ठीक है. दूसरा रीजन क्या है, डायमेंशनल एक्यूरेसी से रिलेटेड. लाइक मान लीजिए कि ये तो हमने इतना लार्ज, थोड़ा साइज जो है बड़ी है, बट गियर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे गियर्स भी होते हैं. So when you are manufacturing the small gears, that time when you are filling this material, because that is just, by the way, there are different types of the filling process, okay, in the casting. But if we are using the simple gravitational filling of this molten material, then there may be a chances that this due to this low viscosity of the molten material, it will not reach to the boundary regions. Okay, ये जो आपकी boundaries हैं यहाँ पे नहीं पहुंचेगा. मान लीजिए यहीं पे जाके फ्यूज हो जाता है,
ठीक है। अगर यहीं पे जाके फ्यूज हो जाता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इसकी डायमेंशन को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको बनाना एक्चुअली तो ये वाला है, लेकिन आप जो फिलिंग कर रहे हैं अब वो इतनी कर रहे हैं, पैटर्न की साइज क्या की है आपने, इंक्रीज कर दी। और बाय द वे यू हैव स्टडीड दीस थिंग्स इन द कास्टिंग के बिकॉज ऑफ द अलाउंसेस, श्रिंकेज अलाउंस हो चाहे सर्टिफिकेशन अलाउंसेस हो, उनकी वजह से क्या करना होता है कि सभी मटेरियल्स के लिए आपको डायमेंशंस, एक्सटर्नल डायमेंशंस जो होती हैं वो ज्यादा चूज करनी, मतलब लार्जर देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, एंड जो इंटरनल डायमेंशंस होती है वो थोड़ी छोटी चूज करनी पड़ती है। ठीक है, एक दो मटेरियल्स को छोड़ दिया जाए तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन रेट क्या होती है, उल्टा होता है इस वजह से। तो मान लीजिए कि आपको यहाँ तक मैन्युफैक्चर करना है बट पैटर्न की साइज को आपने बढ़ा के यहाँ कर दिया। ठीक है, नाउ यू विल फिल दिस एक्सेस अमाउंट ऑफ द मटेरियल थ्रू द मोल्टन मटेरियल। ठीक है, तो अब आपको बेसिकली बेसिक डायमेंशंस तो क्या थी, ये थी। नाउ दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट बाय द कास्टिंग। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, जो भी आपकी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द मटेरियल आपने फिल किया है, नाउ यू विल गो फॉर द मशीनिंग ऑपरेशन। ओके, तो थ्रू द मशीनिंग व्हाट यू विल डू इज यू विल रिमूव दिस मटेरियल। ओके, यू विल रिमूव दिस मटेरियल। ठीक है, पहला तो मशीनिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरे मशीनिंग का ऑपरेशन, दूसरे मशीनिंग के लिए हम लोग एक सिमिलरली क्या करते हैं कि हम लोग जो आपकी ये वाली डायमेंशंस हैं, हम उस डायमेंशंस की एक डिस्क ले लेते हैं। ठीक है, नाउ दिस डिस्क, द थिकनेस ऑफ दिस डिस्क विल बी इक्वल टू जो आपको गियर मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या करिए कि बाय द वे नाउ डेज ऑल द वर्क्स इज गोइंग थ्रू द सीएनसी। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि आपने इसका पहले बेस सर्कल चूज कर लिया। ठीक है, जिसके बेसिस पे आप गियर की डायमेंशंस करते हैं। देन उसके बाद क्या किया आपने, इसका डिजाइन कर लिया, दैट इज दिस विल बी द टीथ दैट वी हैव टू गो फॉर्म ऑन द दिस गियर। ओके, तो ये जो टीथ है आपको बनाने हैं। नाउ इनिशियली क्या था कि ये जो साइज की थी आपने डी डायमीटर की, मान लीजिए कि ये इसका डी डायमीटर है। ठीक है, ये आपने इनिशियली डिस्क चूज कर ली और इसकी थिकनेस टी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का एक प्रिज्मेटिक रोड हो गई ऑफ टी थिकनेस और टी लेंथ। ओके, ऑफ डी डायमीटर। तो इनिशियली जब आपने ये मार्क कर लिया है, टीथ इस पे मार्क कर लिए, नाउ यू हैव टू रिमूव दिस मच अमाउंट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये जो आपका एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द मटेरियल है ये आपको रिमूव करना है। सो फॉर दैट यू कैन गो फॉर द मशीनिंग ऑपरेशन। ठीक है, इसके लिए आप मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ अगेन आपका जो ये आपने जो डिस्क चूज किया है दैट इज कास्टेड ओनली। ओके, और ये जो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस केस में जो गियर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं दैट इज थ्रू द कास्टिंग ओनली। बट जैसा मैंने आपको बोला कि कास्टिंग में जो सरफेस फिनिश होती है वो इतनी अच्छे से नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर द मशीनिंग ऑपरेशंस। अगेन मटेरियल क्या होता है, इफ द विस्कोसिटी ऑफ दैट मटेरियल इज हाई देन इट विल फ्यूज इन बिटवीन ओनली। So if it will fuse, then we are going for the external dimensions, means dimensions को क्या कर रहे हैं हम लोग, increase कर रहे हैं। So when you are increasing the dimensions, then the excessive amount of the material will be filled in other dimensions as well. So now you have to go for the machining operations, जैसा कि हमने यहाँ पे मटेरियल को रिमूव किया। ठीक है, ये वाला मटेरियल। Now if you are using a casted product जो आपका गियर नहीं है but through the machining you are manufacturing, then you have to remove this excessive amount of the material from that. तो मशीनिंग का पर्पज क्या है, अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं, machining is whatever the casted product we have, initial products are there, or we can also that these are basically the casted products. Okay, so casted products अगर हमारे पास हैं then we'll apply the machining operations on that, जो भी हमारे मशीनिंग ऑपरेशन से जो कन्वीनियंट है। ठीक है, मशीनिंग ऑपरेशंस एंड विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट, और वी कैन से इट इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मशीनिंग का पर्पज हो गया, दैट व्हाई वी आर अप्लाइंग द मशीनिंग ऑपरेशंस टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम द कास्टेड प्रोडक्ट और फ्रॉम द रॉ मटेरियल वी कैन से। तो अब मैं इस डेफिनेशन को समझा देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स सच एज गियर्स की बात कर लेते हैं, needed dimensional accuracy and the surface finish for serving their purposes. So for that only we are using the machining. Okay, so now I think it's आपके संपर्क में बैठ गया होगा ये कि why we are using this machining operation. Okay, next is again the principle of machining. ओके, तो अगेन मैं इसकी आपको डेफिनेशन पहले रीड कर देता हूँ, देन विल एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज दिस डेफिनेशन, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन इज, देन विल कोरिलेट इट विद दैट। ओके, तो metal rod of irregular shape, size and the surface is converted into the finished rod. Okay,
of desired dimensions in the surface by machining by proper relative motion of the tool and the workpiece pair. Okay, now sometimes we use the combination, but combination का मतलब क्या होता है कि workpiece and the tool is in a combination, means a combined form is there, but combined नहीं होते हैं. That's why I'm the definition is like tool and the workpiece pair. Okay, pair मतलब है कि like workpiece is different, the tool is different. Now, what the meaning of this definition is, we are using a random shape of a metal rod. ठीक है, this one. Okay, so this is of मान लीजिए कि आपका कैपिटल L लेंथ है इनिशियली इसका, ठीक है, एंड कैपिटल D इसका डायमीटर है, ठीक है. दिस इज जनरली अगर ये कास्टेड है तो हम इसको बिलेट भी बोलते हैं, समटाइम्स इसको ब्लूम भी बोलते हैं, दैट डिपेंड्स व्हाट द क्रॉस सेक्शन इज. तो मान लीजिए कि एक बिलेट है, ठीक है, और हमने इसको इनिशियली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को यहाँ पे रखा है, व्हिच इज ऑन दिस ओवर हियर. ओके, नाउ इनिशियली व्हाट वी आर डूइंग, देखिए ये जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज ऑफ द लेथ मशीन वी आर परफॉर्मिंग अ शाफ्ट. ओके, क्योंकि समझाने के लिए कुछ तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, ठीक है. तो ये एक शाफ्ट है विच इज माउंटेड ऑन अ चक. ओके, एंड दिस इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल विच इज माउंटेड ऑन द टूल पोस्ट. ओके, नाउ इनिशियली वी आर गिविंग सम डेप्थ ऑफ कट, और डेप्थ ऑफ कट दे दीजिए, और फीट देते हुए आप इसको यहाँ पे ले आइए. लाइक दिस इज अ डेप्थ ऑफ कट वी हैव गिवन, ठीक है, ये आपकी डेप्थ ऑफ कट होगी. तो मान लीजिए कि ये डी है, स्मॉल डी, ठीक है, और नाउ वी हैव टू स्टार्ट दिस रोटेशन ऑफ दिस चक और द स्पिंडल वी कैन से, जिससे कि आपकी जो शाफ्ट आपने उसमें माउंट की है ये इस तरह से रोटेट कर सके, ठीक है, ये इस तरह से रोटेट कर सके. नाउ देन वील गिव द, इनिशियली वी हैव टेकन दिस डेप्थ ऑफ कट, नाउ वील गिव द फीट टू दिस टूल, दैट इज फीट, दैट इज इन mm per revolution. नाउ अगेन मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज दिस फीट, मीनिंग ऑफ दैट इज, देखिए फीट का मतलब क्या होता है कि फीट जो हम लेथ में यूज करते हैं वो mm पर रेवोल्यूशन में काउंट होती है, शेपर में दैट इज इन mm पर स्ट्रोक, मिलिंग में डिफरेंट होता है. सो प्लीज आप कंफ्यूज मत होना कि फीट की डायमेंशन जो है दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट मशीनिंग. ओके, तो देखिए यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट कटिंग, ये वर्क पीस है, मान लीजिए एक शाफ्ट है दैट इज माउंटेड ऑन अ चक, एंड दिस इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. ओके, नाउ अगर मैं कहता हूं कि आपकी जो फीड है दैट फीड इज बेसिकली 1 mm पर रेवोल्यूशन, ठीक है, 1 mm पर रेवोल्यूशन है. इसका मतलब क्या है कि व्हेन वन रेवोल्यूशन इज कंप्लीटेड दैट टाइम इट विल मूव द 1 mm. नाउ देखिए mm पर रेवोल्यूशन का मतलब है कि जहां पे रेवोल्यूशन भी होगा और रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी होगा, ठीक है, क्योंकि mm मींस मीटर, दैट इज अ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वी कैन से, but that will cover some distance. Okay, there will be some reciprocating motion will be there. So if the reciprocating motion will be there, it means that that is reciprocating either in the horizontal direction or vertical direction somewhere. Now rotation here, the revolution is affiliated with the tool, this workpiece. This revolution is affiliated with the workpiece, and this reciprocating motion is affiliated with this tool. Okay, reciprocating का मतलब है कि पहले हम इधर मूव करेंगे through the cutting, then we'll bring it again in this direction. Okay, तो 1 mm पर रेवोल्यूशन अगर मैं कंसिडर करता हूँ, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि जो ब्लू पोर्शन है पेन का दैट इज 1 mm, ठीक है, और इनिशियली आपका टूल यहाँ पे है, एंड आपने यहाँ पे कुछ डेप्थ ऑफ कट इसको दे दिया है, ठीक है, आई थिंक दिस विल बी विजिबल टू यू. तो आपने इसको कुछ डेप्थ ऑफ कट दे दिया है. नाउ दिस वर्कपीस विल बी लाइक देन टूल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो 1 mm का मतलब है कि मान लीजिए ये वाला पोर्शन को देखिएगा कि when it will rotate complete one motion, this tool which was initially here after 1 mm revolution it will come over here. Okay, तो इसका मतलब क्या है कि 1 mm आपका ट्रैवल किया टूल ने, when 1 mm one revolution will be completed by this workpiece. So this is the meaning of this feed, okay, in the lathe machines. So we are giving the feed, once this will start rotating, तो क्या होगा कि आपका जो ये डेप्थ ऑफ कट आपने चूज की है, this much amount of the material is removed. But again आपका क्या है कि जो रोड है ये सर्कुलर है, तो ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए कि DMM अगर आपने रखा है, so DMM only will remove the material. जब आप इसको फ्रंट साइड से देखेंगे then it will looks like a rectangular body. ओके, तो अगर आपको यहाँ से अगर आपका मटेरियल रिमूव हुआ है तो नो डाउट आपका ऊपर से भी मटेरियल क्या होगा, रिमूव होगा. सो व्हेन और अगर ये सर्कुलर बॉडी है, देखिए ये क्या है, एक
फ्रंट व्यू है तो इट विल लुक्स लाइक रेक्टेंगुलर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग. अदरवाइज आपका अगर ये सर्कुलर है देन थ्रू आउट पेरीफेरी दिस मटेरियल विल बी रिमूव्ड. ओके, so if d capital D is the diameter, then final will be capital D minus 2 times of the d. ठीक है. So again मैं थोड़ा एक चीज और एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि in the lathe basically there are two operations. First is turning and second is the facing. Okay, different operations are there, but I'm explaining these two. So this operation, when we are keeping this tool over here and we are moving in this direction, we call this process as the turning operation. Okay, and another one is the facing. Now we are holding the single point cutting tool over here. Okay, and initially we have given some depth of cut, that is D. Okay, D we have given. Now we are giving this feed this tool in this direction, okay, towards the center. So when we are keeping this tool over here, keeping this tool over here, and we are moving towards the center. Okay, so when you will move towards the center and it is continuously rotating, the throughout this diameter the material is removed. Okay, so it means when we are moving up from here to here, the throughout the diameter of this will be removed, whatever the depth of cut that you have chosen. So अगर आपका material remove हो चुका है, then this will be the length which is remaining now. So this length will be L minus D. Fine. This will be the length which is remaining now. So ये जो operation था आपका, when you are holding this tool over here, we are calling it as a turning operation, and when we are keeping this tool over here, we are calling it as a facing operation. So in the facing, the length is reduced. In the turning, the diameter is reduced. So टर्निंग में क्या होता है, आपका डायमीटर रिड्यूस होता है, फेसिंग में आपकी लेंथ रिड्यूस होती है. प्लीज ध्यान रखिएगा, बिकॉज दिस इज मैंने एक्सप्लेन इसीलिए किया है कि समटाइम्स दिस क्वेश्चन आज इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस. ओके, सो प्लीज कीप इन माइंड. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, आपने क्या किया कि ये वाला जो मटेरियल था ये रिमूव कर दिया. ठीक है, ये वाला मटेरियल रिमूव हो गया, ये वाला मटेरियल भी आपका क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है. नाउ यू शुड कम टू द डेफिनेशन पार्ट अगेन. A metal rod of irregular shape, irregular shape की हमने metal rod choose कर लिया था. Shape and size and the surface, surface भी मान लीजिए कि rust था या फिर कुछ surface roughness was uneven. Okay, now is converted into the finished rod of the desired dimensions. Desired dimensions मान लीजिए capital D minus 2D है, और length जो है that is L minus D. Desired dimension and the surface by machining. ये जो आपने किया है टर्निंग एंड द फेसिंग, दिस इज बेसिकली द मशीनिंग बाय प्रॉपर रिलेटिव मोशन ऑफ द टूल वर्क पीस पेयर. ठीक है, तो टूल एंड वर्क पीस पेयर मींस जब आपने डायमीटर रिड्यूस करना था, देन वी विल गो फॉर द टर्निंग ऑपरेशन. वी आर होल्डिंग दिस टूल लाइक दिस. ओके, एंड जब हमने फेसिंग करना था, दैट टाइम वी आर रिड्यूसिंग दिस लेंथ, सो वी आर कीपिंग दिस टूल लाइक दिस. ओके, सो दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ दिस मशीनिंग ऑपरेशन. ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ. So let's move to the next part, which is the concept of directrix and the generatrix. देखिए, देखिए कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको दो चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ. फर्स्ट, लाइक ये कैलकुलेटर है, ठीक है, बट जस्ट ट्राई टू एज्यूम इट इज अ रेक्टेंगुलर बॉडी. ओके, दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग. फर्स्ट रेक्टेंगुलर बॉडी का, दूसरा होगा सिलेंड्रिकल बॉडी का. ठीक है, देखिए ये रेक्टेंगुलर बॉडी है, तो मान लीजिए कि इस पे जो ये की पेड बना हुआ है, ठीक है, इसकी कुछ आपको थिकनेस दिख रही होगी नाउ. ओके, नाउ और इसकी कुछ विड्थ्स भी हैं. ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये जो की पेड्स हैं, इतना मटेरियल और थ्रू आउट दिस साइड वी हैव टू रिमूव फ्रॉम दिस दिस फ्लैट सरफेस. ओके, देन वी हैव दिस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. नाउ ऐसा मान लेते हैं कि जितनी इसकी विड्थ है, जिसकी इतनी की विड्थ है, की विड्थ है, उतनी ही विड्थ का मैं आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की साइड को चूज कर रहा हूं. सो दैट विल रिमूव इन अ सिंगल पास. ओके, नाउ वी हैव टू रिमूव दिस अमाउंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम दिस थिकनेस, जो भी इसकी थिकनेस है. सो व्हाट वी कैन डू इज टू थिंग्स इज देयर. फर्स्ट, आई कैन कीप दिस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ओवर हियर. ओके, एंड आई विल मूव इन दिस डायरेक्शन. सो दिस मच अमाउंट, दिस फर्स्ट जो आपका ये की है वो रिमूव हो जाएगी, उतना मटेरियल रिमूव हो गया. नाउ व्हेन इट विल रीच टू हियर, आई विल ब्रिंग दिस कटिंग पॉइंट सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अगेन ओवर हियर, जो सेकंड पोजीशन है आपकी, दिस वन. ओके, नाउ अगेन आई विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड come up to here. Again I will bring this single point cutting tool over the third position. Okay, and like this the process will come out. Okay, and the material will remove from the workpiece.
Now there is another option is like I can keep this single point cutting tool like this, and जो भी इसकी thickness है accordingly हम लोग इसकी भी thickness width को choose कर लेते हैं. So first it will move like this, and when it will reach to here, again we will bring this single point cutting tool over here. Okay, then again it will move like this and bring it over here, and again it will move. So like this the material will be removed. So if we are talking about the plate body, then there are two types. First is we can remove through the lengthwise, or we can move towards the widthwise. Now let's take another example of this water bottle. देखिए दो इमेज मैंने इसमें यूज की है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, बट मेरी दूसरी वाटर बॉटल की है वो. ठीक है, ये वाटर बॉटल नहीं है. ठीक है, इसमें मैं समझाना क्या चाह रहा था बेसिकली कि ये मान लीजिए कि आपकी एक फ्लैट सरफेस, सॉरी सिलेंड्रिकल सरफेस है. नाउ वी आर कीपिंग दिस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ओवर हियर, and when we have to remove the material we have to move in this direction. So in turning अगर करना है and facing अगर हमें करना है, then I'm keeping the single point cutting tool over here like this, and I have to move in this direction, okay, up to the center. So that will remove the material. Okay, but देखिए जब हम इस तरह से मूव कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं, that time this water bottle is rotating like this. Okay, and when we are moving in this direction, आप इसको देखिएगा, पहले आपने इसको देखा, now इसको देखिएगा. पहले पेरीफेरी थी, now this surface. So when we are keeping this tool like this, it is rotating like this. Okay, तो ये दो केसेस का एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूं. ओके, फर्स्ट मैं आपको फ्लैट बॉडी का एग्जांपल दिखा देता हूं कि फ्लैट अगर मान लीजिए कि एक आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉडी है. So how we can proceed for that? So first is like we can keep the single point cutting tool over here, and we can move in this direction and remove the material of specific thickness जो आपका remove करना है. ठीक है, again when the single point cutting tool will reach to over here, we will bring that single point cutting tool to over here. Okay, and we will move the cutting motion in this direction, and we will reach to over here. Again we will bring the single point cutting tool over here, and it will proceed like this. Okay, तो ये जो इस तरह से आपका क्या होगा, तो मटेरियल जो है वो रिमूव होता रहेगा when we are moving in this direction. तो देखिए आपने क्या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पहले यहाँ पे रखा, then we are moving in this direction and the material is removed. ये जो था आपका मटेरियल रिमूव हो गया. So now this material is removed, so we are calling that this is the basically the cutting motion, and when there is a cutting motion we call this as a generatrix. जो लाइंस जनरेट होंगी उस डायरेक्शन में, we call them as a generatrix. Okay, now to remove the material, for the removal of the material we are moving in this direction. For the removal of the material we are moving in the vertically upward direction. Okay, क्योंकि हम पहले यहाँ पर थे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, फिर यहाँ पे लेके आया, फिर यहाँ पे लेके आया, फिर यहाँ पे लेके आया. इस तरह से क्या किया कि पहले फर्स्ट लेयर का रिमूव किया, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, लाइक दैट. ओके, तो थ्रू आउट फिर तो फॉर रिमूवल ऑफ द मटेरियल वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मींस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो दिस डायरेक्शन. So we call this as a directrix, and in other terms also we can say that directrix is basically that will provide the path to the generatrix, कि आपको बेसिकली किस डायरेक्शन में मटेरियल को रिमूव करना है. ठीक है, तो अगर आप इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेंथ वाइज अगर मटेरियल रिमूव करते हैं तो that will generate the generatrix, and perpendicular to that will be directrix. Okay, now similar that I told you, that is मान लीजिए कि ये आपकी एक बॉडी है रेक्टेंगुलर, एंड नाउ वी आर कीपिंग द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ओवर हियर, एंड वी आर मूविंग और रिमूविंग द मटेरियल इन दिस डायरेक्शन. सो व्हेन वी विल रीच अप टू हियर, again we have to come over here. Okay, so like this will remove the material. तो पहले आपने इसका किया, like first आपका इस डायरेक्शन में मटेरियल रिमूव हुआ, so this will be the generatrix. Okay, and for the removal of the material we are moving in this direction, horizontal direction. So this in this direction there will be the directrix, and that will remove the material throughout this surface. Okay, throughout this length. This was the example of a flat body. Now we are taking example of the cylindrical body. ठीक है, देखिए जैसा मैंने बोला कि वाटर बॉटल थोड़ी चेंज थी. ठीक है, तो देखिए ये वाली जो सरफेस है पेरीफेरी है. ठीक है, सिलेंड्रिकल पेरीफेरी. तो इसमें जब आप देखेंगे साइड्स, आप यहाँ से जब देखेंगे तो आपको ये लाइंस दिखाई दे रही होगी. ठीक है, इसको क्या मैंने कोशिश किया था कि मैं थोड़ा इसको टिल्ट करके इसका फोटो ले सकूं, बट लाइटिंग थोड़ी ज्यादा थी, इस वजह से प्रॉपर नहीं आ पाया. बट अगर मैं आपको इसको डायग्राम बना के बताता हूँ कि लाइक
ठीक है, ये आपकी बॉडी है। मान लीजिए ये आपकी बॉटल थी, तो आपका जो जनरेट्रिक्स जनरेट होगा दैट विल बी लाइक दिस। ओके, ये क्या है कि मान लीजिए कि थोड़ा टिल्ट करके आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, टिल्ट करके जब आप इसको देख रहे हैं तो दिस विल बी द जनरेट्रिक्स। ओके, अगर आप मान लीजिए कि इसको टिल्ट करके ना देखते हैं और मान लीजिए कि जैसे ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, जब आप इसको फ्रंट साइड से देखेंगे तो आपको एक ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर दिखाई देगा, ठीक है, एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो अगर आपका ये रेक्टेंगल है, मान लीजिए कि फ्रंट व्यू जब आप इसका देखते हैं तो फ्रंट व्यू आपको एक रेक्टेंगल दिखता है। तो ये जो आपकी लाइंस है ना, हालांकि मैंने इसको थोड़ा टिल्ट करके खींचने की कोशिश किया, इस वजह से थोड़ी ये इस तरह से दिख रही है, लेकिन अगर जब आप इसको एग्जैक्टली सामने से देखेंगे दैट टाइम इट विल बी दीज लाइंस विल बी लाइक दिस। ठीक है, नाउ अब आपने क्या किया कि यहाँ पे आपका अगर हम बात करें कि मटेरियल रिमूवल के टाइम की, तो हमने क्या किया, इसको इस तरह से रखा एंड वी आर होल्डिंग दिस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लाइक दिस एंड वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो जो मैंने आपको अभी फीड का कंसेप्ट समझाया था कि फीड का मतलब क्या था कि मान लीजिए कि हम mm पर रेवोल्यूशन या 1 mm पर रेवोल्यूशन कंसिडर करते हैं, तो इसका मतलब क्या था कि व्हेन इट विल रोटेट, व्हेन देयर विल बी अ कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, दिस टूल विल मूव 1 mm इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको इतनी तो फीड चूज करना ही है कि दैट विल रिमूव द मटेरियल। जैसे मान लीजिए कि आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अभी इस पोजीशन पे है, तो ये आपको ऐसी फीड तो रखनी ही पड़ेगी कि फर्स्ट व्हेन इट विल कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन टिल दैट इट विल रिमूव द मटेरियल फ्रॉम दिस पोर्शन ओनली। मतलब जो आपका ये वाला पोर्शन है, जितना इसकी विड्थ है, ठीक है, आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की जो ये विड्थ है ये वाली, ठीक है, तो ये इसके अगर कांटेक्ट में है तो एटलीस्ट इसका जब 1 रेवोल्यूशन हो जाए तो ये इतना मटेरियल तो यहाँ से रिमूव करे ही करे, उसके बाद ये आगे बढ़े। ठीक है, इतनी तो आपको मिनिमम फीड रखनी ही पड़ेगी, तभी जाके आप पूरा मटेरियल रिमूव कर पाएंगे, अदरवाइज नई अनइवन सरफेस जनरेट हो जाएगी। तो जब हम क्या करते हैं कि व्हेन वी आर कीपिंग दिस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ओवर हियर, ओके, एंड देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ द मटेरियल, इसका मतलब क्या है कि व्हेन इट विल कंप्लीट रोटेशन विल बी देयर, देन ओनली दिस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल विल मूव इन दिस डायरेक्शन। फीड जो हम देंगे, ठीक है, फीड को हमें अकॉर्डिंगली चूज करना है। इसका मतलब क्या है कि आपका यहां से मटेरियल रिमूव हुआ है फर्स्ट, ओके, then we are calling this as a generatrix. Now to removal of the material, excessive amount of the material from this workpiece in this direction, we are moving this tool in this direction. इसका मतलब क्या है कि पहली आपकी generatrix यहाँ पे generate हो चुकी है, now we are moving in this direction, again there will be second, third, fourth, like this material will remove. Okay, तो पहली ये आपकी जनरेट्रिक्स है, दूसरी जनरेट्रिक्स आपकी ये होंगी, तीसरी आपकी ये, चौथी ये, इस तरह से चलती जाएगी। बट टू रिमूवल ऑफ द मटेरियल यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो दिस पहले आपका टूल यहाँ पे रहेगा, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, इस तरह से। सो इन दिस डायरेक्शन देयर विल बी द डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो एक्चुअल में बेसिकली क्या, एक सर्कुल जो है दैट इज द जनरेट्रिक्स। ओके, बट जब आप इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे दैट विल बी रेक्टेंगुलर, तो आपको क्या है कि ये फ्लैट दिखाई देगी। So this will be the generatrix and this will be the directrix. Okay, तो ये किसका था, ये एग्जांपल था टर्निंग का। ठीक है, नाउ फेसिंग का एग्जांपल देख लेते हैं कि ये आपका सेम डायमीटर का कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, एंड दिस इज बेसिकली द फेसिंग पार्ट, मींस सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, ठीक है, नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कीपिंग दिस। देखिए ये आपका यहाँ से मटेरियल रिमूव करना है तो हमें इस तरह से मूव करना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन यू विल सी फ्रॉम द फ्रंट साइड दिस विल लुक्स लाइक अ पॉइंट, ओके, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो दिस विल बी लाइक दिस इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल and we are start rotating this one, so when it will complete, like it will complete one complete revolution, this will remove the material from this area। ओके, यहाँ से रिमूव हो गया, नाउ इट विल मूव टू द सेकंड वन, मतलब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को हमने यहाँ पे मूव किया, देन इट विल रिमूव द मटेरियल फ्रॉम दिस एरिया। ओके, नाउ इट विल द सिंगल पॉइंट कटिंग tool will move like this। okay, so this will remove the material like this। okay, and this is basically again a circular, so this is basically the generatrix, and to removal of the material we are moving towards this side, so this will be the डायरेक्ट्रिक्स। ओके, समझ में आ गया आपको। अब देखिए आपकी जो ये जनरेट्रिक्स है आपकी, ये देखिए ये आप जब इस बॉडी को देखेंगे जो उसका अपन पोर्शन है, ठीक है, तो दिस विल बी द जनरेट्रिक्स। ओके,
तो यही बेसिकली इसको समझाने के लिए मैंने ये कंसेप्ट यूज किया है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी रिसेंटली ये 21 में आया है, सेट 1 मतलब मॉर्निंग सेशन में आया था। सो व्हाट इज द सरफेस जनरेटेड, ये आपको फिगर दिया हुआ है, एंड व्हाट इज द सरफेस, एमसीक्यूज इज देयर, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपकी जनरेट्रिक्स ये है, मतलब सर्कुलर जनरेट्रिक्स है। मान लीजिए कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपका यहाँ पे है, एंड फर्स्ट यू विल रिमूव द मटेरियल लाइक दिस, ओके, सो दिस विल बी द जनरेट्रिक्स, एंड फॉर द डायरेक्ट्रिक्स यू हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन, ओके। तो मान लीजिए कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो है आपका इस डायरेक्शन में मूव होता जाएगा इस तरह से, ठीक है। सो इट विल रिमूव, पहले आपने यहाँ पे रिमूव किया, सेकंड यू विल रिमूव द मटेरियल फ्रॉम दिस सरफेस, then you will come to here, then you will come to here like this। तो किस तरह की सरफेस जनरेट हो रही है? It is a cylindrical surface, so option will be B, so B will be the answer, okay। now देखिए इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जिस तरह से मैंने इसको दिखाया है कि लाइक आपको अगर ऐसा बोला होता है कि दिस इज अ फ्रंट व्यू ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी, और आपको ये परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जनरेट्रिक्स गिवन है, इस डायरेक्शन में आपको डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। नाउ टेल दैट व्हिच सरफेस इज जनरेटेड, सो अगेन दैट द सेम आंसर, दैट इज सिलेंड्रिकल सरफेस इज जनरेटेड। बट व्हाई आई रिटन दिस वन, दैट इज फ्रंट व्यू ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी, बिकॉज आप ये फ्लैटन सरफेस थी आपकी, ये आपकी फ्लैट सरफेसेस थी, ठीक है। तो फ्लैट सरफेसेस में भी क्या है कि आपकी इस डायरेक्शन में आपकी जनरेट्रिक्स है, इस डायरेक्शन में आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। So that's why I written that this is a front view of a cylindrical body, that time you will generate the जो surface होगी that will be generated in a cylindrical way, okay। So this is all about in this video from my side. In the next video we'll discuss about the basic of the machining operations, basic of the metal cutting operations, okay। And thank you so much guys, see you soon।